My dear friends, today I am going to discuss about motion chapter of class 9. This is your first chapter of physics. This is the beginning of your physics lesson. So your first chapter is motion. So first let us understand about rest and motion. So rest and motions are two relative words. Rest and motion क्या होता है? दो relative words होता है. Now we will define rest. A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to time. कोई भी बॉडी रेस्ट में तब कहलाता है जब वह अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है. समय रुका हुआ है, समय तो हमेशा चल रहा है. टाइम इज कंटिन्यूअसली गोइंग, कंटिन्यूअसली मूविंग. But with respect to time, if this chair changes its position, क्या ये चेयर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं. No. Your answer is no. This chair doesn't change its position with respect to time. So a body is in rest if it does not changes its position with respect to time. So the basic condition for a body to be in rest is that if it does not change its position with respect to time, then it is in rest. So let us write the definition. A body or an object is said to be in rest if it does not changes its position with respect to time. I am here. I am in rest. I am in rest because I did not change my position. Time is going. Time is going. But am I change my position? क्या मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ टाइम के साथ? टाइम चल रहा है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या है? मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया. With respect to time, I did not change my position. टाइम के साथ मैंने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया. So I am in rest. इसीलिए हम क्या है? रेस्ट में है. अब मोशन. A body or an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ with respect to time अपना पोजीशन चेंज करता हो तो उसे मोशन कहते हैं. जैसे एक ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन चल रहा है, तो टाइम के साथ क्या है? ट्रेन अपना पोजीशन चेंज कर रहा है. दिल्ली से निकला, पटना चल गया, तो दिल्ली से चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम दिल्ली टू पटना with respect to time. So with respect to time, this train is changing its position. So the basic condition for a body or an object to be in motion is that if a body or an object changes its position with respect to time, then the body or an object is said to be in motion. So let us write the two definitions. First one is of rest. A body or an object is in rest if it does not changes its position with respect to time. Second one, a body or an object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. अगर समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, समय के साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो बॉडी मोशन में है. और समय के साथ बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो बॉडी रेस्ट में है. तो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस कर लिया. आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है. नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स. रेस्ट एंड मोशन क्या होता है? रिलेटिव वर्ड्स होता है. ये रिलेटिव वो नहीं है, संबंधी वाला रिलेटिव नहीं है. एक्चुअली रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव वर्ड्स. अब योर क्वेश्चन इज how can you say that rest and motion are relative words? आप कैसे कह सकते हैं कि rest and motion are relative words है? क्या आप मुझे देख के क्या बोलिएगा? I am in rest. मैं किस में हूँ? रेस्ट में हूँ. लेकिन my question is wrong. मेरा क्वेश्चन ही गलत है. मैं अगर आप लोग से पूछ रहा हूँ मैं किस स्टेट में हूँ, तो this question is wrong. This question is incomplete. मेरा ये क्वेश्चन क्या है? Wrong है या फिर incomplete है? तो आप लोग पूछेगा कैसे इनकम्प्लीट है या कैसे रॉन्ग है, तो मैं बोलूंगा मैं अभी रेस्ट में भी हूँ, मोशन में भी हूँ. आई एम इन रेस्ट एज वेल एज आई एम इन मोशन. नाउ दिस इज अ सीरियस कॉन्सेप्ट. This is a serious thing. How can I say that I am in rest, I
आई एम इन मोशन इन द साइमल्टेनियस टाइम। एक ही समय हम कैसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट में भी और मोशन में भी है? तो इसीलिए एक कंसेप्ट है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स। तो कोई भी बॉडी से अगर आप पूछिएगा कि आप रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, तो उसको पूछने के लिए आपको एक चीज डिफाइन करना पड़ेगा, एंड दैट वेरी थिंग इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज दिस वेरी थिंग नोन एज? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सपोज अगर आप लोग मुझसे यह पूछिएगा, जैसे आप लोग ट्रेन से सफर किए होंगे, ट्रेन से सफर कीजिएगा तो ट्रेन जब चल रहा है तो आपके सामने पैसेंजर बैठा होगा, सीट पे पैसेंजर बैठा होगा आपके सामने, उसे क्या लग रहा है? उसे ये लग रहा होगा कि आप जो है ट्रेन पे बैठे हुए हैं, ट्रेन के साथ जा रहे हैं, मतलब उसको क्या लग रहा है कि आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं? लग रहा होगा ना कि ट्रेन पर आप बैठे हुए रुके हुए हैं, तो वो क्या बोलेगा? आप तो रेस्ट में हैं, आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रेन चल रहा है, आप तो बैठे हुए हैं, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि आप रेस्ट में हैं। लेकिन मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जो पटरी पे खड़ा है और वो देख रहा है, उसे क्या लगेगा कि ट्रेन के साथ आप क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो उसे क्या लगेगा? उसे यह लगेगा कि आप अपना पोजीशन टाइम के साथ आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पर्सन जो आपको देख रहा है सामने, जो आपके साथ बैठा हुआ है, उसे लग रहा है कि आप अपना टाइम के साथ आपने अपने पोजीशन को बिल्कुल चेंज नहीं किया है। लेकिन जो आपका फ्रेंड खड़ा है, बाहर खड़ा है ट्रेन के, और आपको देख रहा है जाते हुए, ट्रेन को चलते हुए देख रहा है, तो उसे यह लगेगा कि वह जो है, आप जो है ट्रेन के साथ जा रहे हैं, आप अपना यू आर चेंजिंग योर पोजीशन। दैट वेरी पर्सन थिंक्स दैट यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वो पर्सन क्या बोलेगा कि आप मोशन में हैं, लेकिन आपके सामने वाला क्या बोलेगा? आप रेस्ट में हैं। तो रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेंड यू आर इन मोशन, विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेंजर इन द ट्रेन यू आर इन रेस्ट। सो आप रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, इफ समवन आस्क्स यू अ क्वेश्चन, आर यू इन रेस्ट और आर यू इन मोशन, सो फर्स्ट यू सेड टू दिस पर्सन, प्लीज गिव मी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताइए। जैसे हम यहाँ अर्थ पे खड़े हैं, सपोज ये पर्सन चांद पे चल गया, चांद पे जाके वो पर्सन देखेगा तो अर्थ क्या है? रोटेट हो रहा है, अर्थ रोटेट हो रहा है, तो उस पर्सन को लगेगा कि हम किसमें हैं? मोशन में हैं। लेकिन आपका जो फ्रेंड है या कोई भी है, तो वो देख के हमको क्या बोलेगा? हम रेस्ट में। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रेस्ट और मोशन को आप तब तक नहीं डिफाइन कर पाइएगा जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पता है। विथ रेफरेंस टू, अगर चांद पे कोई आपको देखेगा तो उसको लगेगा कि आप मोशन में हैं, लेकिन आपके सामने कोई देखेगा तो आप रेस्ट में। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव वर्ड्स। Now we will define the concept of distance and displacement. So let us understand the concept of distance and displacement. Before understanding the concept of distance and displacement, you must know two terms: scalar and vector. So, scalar and vector are basically two types of quantities. First one is scalar, second one is vector. So, write the definition. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction. कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, that very quantity is known as scalar quantity. Vector quantities are the quantities which have magnitude plus direction. ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? वेक्टर। सो स्केलर का डेफिनेशन क्या हुआ? स्केलर आर दोज क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, व्हाइल वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव both
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझ में आ गया। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्पीड, डिस्टेंस, these are the example of scalar quantity। ये सब क्वांटिटी के बारे में we will discuss later on we will discuss about the speed, we will discuss about distance। so distance and speed are scalar quantity। mass is also a scalar quantity। vector, let us write some examples of scalar are speed, distance, mass, etc। and let us write some examples of vector। some examples of vector are weight, force, velocity, displacement। so scalar vector के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। after all we will discuss more scalar, more vector। so अभी आप लोगों को बस डेफिनेशन याद रखना है कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब now we will discuss the most important thing that about distance and displacement। suppose this is a boy, he is a boy whose name is EG। यह एक लड़का है जिसका नाम है EG। यह क्लास 5 में पढ़ता है। EG नाम का एक लड़का है जो क्लास 5 में पढ़ता है। मान लीजिए वो घर से निकल रहा है, वो अपने घर से निकल रहा है कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। EG का घर है मुरारपुर में। अब मान लीजिए EG अपना हाउस से घर से स्कूल के लिए निकला। तो EG के घर से स्कूल के लिए 3 रास्ता है। There are 3 paths from EG house to school। EG के घर से स्कूल के लिए 3 रास्ता है। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2 और रास्ता नंबर 3। या तो EG रास्ता 1 से जा सकता है, रास्ता 2 से जा सकता है या रास्ता 3 से जा सकता है। अब डिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए EG रास्ता 1 पे गया तो उसके लिए डिस्टेंस रास्ता 1 हो जाएगा। रास्ता 2 से अगर EG गया, 3 रास्ता है उसके घर से स्कूल जाने के लिए। रास्ता 2 से अगर EG गया तो फॉर EG द डिस्टेंस फॉर EG इज रास्ता नंबर 2। रास्ता नंबर 3 से अगर EG गया तो देन फॉर EG डिस्टेंस इज रास्ता नंबर 3। सो डिस्टेंस डिपेंड अपॉन EG। डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? EG पे डिपेंड कर रहा है। EG के मन पे डिपेंड कर रहा है कि कभी EG का मन कर गया कि हम रास्ता नंबर 1 से जाएं, कभी EG का ऐसा मन कर गया कि हम आज जो है घूमते फिरते रास्ता नंबर 2 से चल जाए, कभी EG का मन किया रास्ता नंबर 3 से चल जाए। सो द डिस्टेंस इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन EG माइंड। EG के मन पे डिपेंड कर रहा है। सो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय EG, नॉट EG, आई एम जोकिंग। द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय a body or an object is known as distance। Actually distance is the actual path traveled by a body। बॉडी अगर 1 नंबर से जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस 1 हो जाएगा। अगर कोई बॉडी 2 नंबर रास्ता से चल जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस नंबर 2 हो जाएगा। अगर कोई 3 नंबर से चल जाएगा तो उसके लिए डिस्टेंस 3 नंबर हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे बहुत सारा हो सकता है। सो डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। बॉडी जिस रास्ता से जाता है वो बॉडी के लिए क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है कि इट हैज नो डायरेक्शन। मान लीजिए अगर इससे चल गया तो उसका डायरेक्शन ये हो गया, और ऐसे गया तो उसका डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगा, ऐसे गया तो उसका डायरेक्शन ऐसे करके हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है?
कभी सीधा है, कभी ऐसे करके है, कभी ऐसे करके है, तो डिस्टेंस किसका एग्जांपल हो गया? स्केलर का, क्योंकि स्केलर में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्टेंस इज एक्चुअली द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, एंड इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा दूरी, मान लीजिए ईजी है, ईजी का घर और स्कूल से बीच का सबसे छोटा दूरी है रास्ता नंबर 2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इन दिस एग्जांपल, रास्ता नंबर 2 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ईजी हाउस एंड द स्कूल। ईजी के घर से स्कूल तक का सबसे छोटा दूरी रास्ता नंबर 2 है। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज रास्ता नंबर 2। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है हाउस और फाइनल पोजीशन है स्कूल, तो स्कूल हाउस से स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता और सबसे छोटा पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एंड इट इज अ वेक्टर। वेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि इसी पाथ को डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं कराएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को कहते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्योंकि इसका एक फिक्स डायरेक्शन होता है। तो लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। So right, displacement is the shortest distance or the shortest path between initial and final position. It is actually a vector which joins initial and final position. लिख लिया आपने? Now we will learn about difference between distance and displacement. Distance और displacement के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये पहला नंबर डिफरेंस हुआ। दूसरा नंबर, डिस्टेंस इज एनी पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन द माइंड ऑफ पर्सन और द माइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज एक्चुअली द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी। While displacement is always and always the shortest path or the shortest distance between initial and final position. It's the second difference. Let us understand the SI unit. SI unit is meter. Distance और displacement दोनों का SI unit क्या होता है? मीटर होता है. So distance and displacement, concept of distance and displacement are clear. Actually, distance is the actual path traveled by body, while displacement is the shortest distance between initial and final position. Distance is a scalar quantity, while displacement is a vector quantity. अब तीसरा डिफरेंस बोलने जा रहा हूँ। Distance can be only with positive. Distance हमेशा पॉजिटिव होगा, while displacement can be positive, negative और zero. अच्छा सुनिएगा, distance is always a positive quantity while displacement is positive, negative और zero. distance हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। मान लीजिए आपने स्कूल से हॉल से अपना जर्नी स्टार्ट किया। मान लीजिए एक लड़का है, घर से स्कूल गया, 5 किलोमीटर उसके घर से उसका स्कूल। घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आया, घर से अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा? घर। अपना जर्नी घर से स्टार्ट किया और स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आ गया, उसका फाइनल पोजीशन क्या होगा? घर। तो इस लड़के का
इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों कवर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने क्या बताया? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड इन दिस केस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बोथ आर द सेम, दोनों सेम है। इनिशियल पोजीशन भी घर है, फाइनल पोजीशन भी घर है, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जबकि डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होगा? एक्चुअल 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर आया। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ये केस में, अगर बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन, अपना जर्नी जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके फिर से रुक जाता है, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में, और यहाँ पे इनिशियल और फाइनल दोनों बॉडी का सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ बॉडी का कितना हो जाएगा? जीरो, जबकि बॉडी का डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुका है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। Now we'll discuss about speed and velocity. स्पीड क्या होता है? स्पीड को बोलते हैं हिंदी में गति। स्पीड इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या हुआ? स्पीड डिस्टेंस चेंज करने के रेट को स्पीड कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नाउन एज स्पीड। मान लीजिए ये स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब मैंने स्पीड का क्या डेफिनेशन बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के चेंज करने के रेट को। तो रेट ऑफ मतलब क्या हुआ? जहां भी रेट आए वहां किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से। तो स्पीड का क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? स्पीड। सो स्पीड क्या हुआ? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज करने के रेट को क्या कहते हैं? स्पीड। When distance is divided by time, we get speed. क्या करेंगे? स्पीड। तो स्पीड क्या हुआ? When distance of the body, when distance traveled by body is divided by the time taken by body to travel this distance, then we get a quantity, and this very quantity is known as speed. स्पीड क्या हुआ? डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? स्पीड। स्पीड इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर इसका डेफिनेशन बोला जाए उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एंड स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी आप लोगों को बताया क्या होता है? डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और इसको इस तरह भी लिखते हैं ms - 2। So SI unit of speed is meter per second. Speed is distance by time. Now velocity. One more thing is velocity. Speed is the rate of change of distance. Velocity is the rate of change of displacement. वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? वेलोसिटी। जबकि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो